Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine and I welcome you in my maths class. Dear students, as you know that in last maths lecture we have read about the even and odd numbers. Okay, we have make the pairs of many things. Okay, let's revise that topic again. Odd and even numbers. Even numbers means that numbers that we can put it in pairs. Okay, are called even numbers, and the numbers that we cannot put in the pairs are called odd numbers. ठीक है. Now here is a question on page number 20. You can see it's a challenge. Okay, here's the activity based question and we will do this. Color according to the numbers given, circle the even numbers. Okay, now dear students, what we have to do is we have to color these boxes. We have to color these boxes according to the numbers given. जितने भी numbers है उसी हिसाब से हमें boxes को color करना है. ठीक है. This and this one is done for us, so we will start from the next row, and that's here is 13. Here is a number 13 and we have to color how many boxes? We have to color 13 boxes. Okay, तो हम आप जब color करेंगे 13 boxes को, ठीक है. Then here is 14. You will color on the color in the 14 boxes. You will color in the 15 boxes, then here in 16, here in 18, here in 20, here in 17, here in 19, and I hope you have understand this pattern. Okay, so after that when you will color this color these boxes, what you have to do is to circle the even number. You have to find out the number that is even number and you have to circle on that. Okay, आपको ढूंढना है फिर इवन नंबर कौन सा है, हम उसको सर्कल करेंगे. ठीक है. एज यू कैन सी हियर इज अ 12 and 12 is the even number. How? Because here is a pair of color. Here is a pair of one color, another color, येलो, दिस. ठीक है. तो ये सारे कलर्स जो है ना पेयर्स में है. ठीक है. तो ये इनका पेयर बन गया 12 का. दैट मीन्स वी आर एबल टू पुट 12 boxes in pairs, 12 colors in pairs, so we will circle this because it's an even number. बट यू कैन सी हेयर 11. हमने क्या किया है, 11 बॉक्सेस को कलर किया है. अगर हमने यहाँ से फेरोज़ी किया है, यहाँ से भी हम फेरोज़ी करेंगे. ठीक है. तो बन गया इनका पेयर. जो दूसरा कलर है उनका भी हम पेयर बनाएंगे. फिर जो तीसरे 2 बॉक्सेस हैं उनको भी कलर करेंगे तो बन जाएगा पेयर. तो फिर जो अगला है उस कलर का भी हम पेयर बनाएंगे, तो फिर इसका भी पेयर बनाएंगे. और लास्ट में जो 11 है उसका यहाँ तक तो 10 आ गए. ये जो 11th नंबर है तो 11th नंबर हम अकेले करेंगे बिकॉज मतलब कि 11 यहीं तक आता है. वी कैन नॉट मेक इट स्पेयर, सो वी कैन से इट्स एन ऑड नंबर, सो वी विल नॉट circle it. We will circle only those numbers that are even numbers. So you will do this. Okay, now dear students, we will move towards our main topic. Today's topic that I have taken for you is ordinal numbers. Ordinal numbers. It's on page number 21. Okay, you can see here it's on page number 21. Ordinal numbers, this is a short concept, this is a short topic and simple topic for you, so we will finish it today. Okay, so ordinal numbers. What ordinal numbers are? Dear students, we have read about the numbers. We have make the numbers of up to 100. Okay, up to 999. Okay, we have read about the order of numbers, etc. Okay, greatest numbers, smallest numbers, but here are ordinal numbers. What these ordinal numbers means, ये क्या होते हैं ये ordinal numbers. ठीक है. Dear students, the numbers that tells us the position or order of anything. ठीक है. जो हमें किसी चीज़ का पोजीशन बताए, कौन किस पोजीशन पे है, चाहे इंसान ही हो चाहे कोई चीज़ ही हो, किस ऑर्डर पे है. ठीक है. किस पोजीशन पे है, किस जगह पे है, किस प्लेस पे है. ठीक है. और हम किसी की प्लेस की पोजीशन जो है ना वो कैसे देख सकते हैं, बाय नंबर्स, एंड दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स. ठीक है. हम नहीं बोल सकते कि वो वहाँ पे है और वो वहाँ पे है. नो, हम उनके पोजीशंस दिखाते हैं कौन किस नंबर पे है. सो फॉर दैट आई विल शो यू हेयर ordinal numbers. Okay, ordinal numbers, order or position of things.
Now the position of things, what are these numbers? These are numbers, the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and 10th. These are the position numbers, these are the ordinal numbers. ठीक है, तो जब हम किसी की पोजीशन दिखाएंगे तो आपने सुना होगा कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है, वो सेकंड पोजीशन पे है, वो थर्ड पोजीशन है या वो लास्ट पोजीशन पे है. दीज डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ एनीथिंग, है ना, कौन किस पोजीशन पे है. बट इन शॉर्ट फॉर्म वी राइट IST फॉर फर्स्ट, ठीक है, 2ND second for second, 3RD third, 4TH means fourth, 5TH means fifth, 6TH means sixth and so on. These are the short forms of these positions. ठीक है, कौन किस जगह पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ठीक है, तो हुआ लर्न, ये आपको लर्न करने हैं द पोजीशंस. Here I will show you on a picture. Here is a picture, okay, and here this is a bank. These are the persons waiting for their turn in the bank. Now we will see which who is in the first position, who is on the second position and so on. You can see as a woman and she is standing on the first position. Here's a man, he is on the second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and last one is on the 10th position. Okay, तो वो किसी पोजीशन पे है. हम मत अगर हमें बोलना होगा कि ये जो है ये वुमन ये किस पोजीशन पे है, तो हम काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. शी इज़ ऑन द फिफ्थ पोजिशन, वी कैन से. ओके, सो दीज आर the positions and these are their short forms. Okay, now we will directly move our exercise 1F and it's action exercise. It is an activity. Okay, so we will do this. This is an easy activity. Draw 10 beads on the string then color. This is a string, ये एक धागा है ना, धागा. हमें इसमें क्या बीड्स लगाने हैं, होते हैं ना धागे में वो माला होती है ना, तो उसमें वो बीड्स होते हैं लगाते जो है, या नेकलेस जैसे होता है. ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है, एक धागा है, इसमें हमें बीड्स लगाने हैं. ठीक है, तो ये क्या जो है ये कहता है कि कैसे आपको धागे लगाने हैं, करेक्ट पोजीशन में लगाने हैं. लेकिन मतलब कि हम कैसे करेक्ट पोजीशन, हमें तो नहीं पता. देखिए यहाँ पे ये जो क्लू दिया गया है, दैट इज़ फर्स्ट बीड ब्लू, यानी कि जो हम फर्स्ट बीड बनाएंगे उसका कलर कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए. जो थर्ड बनाएंगे उसका क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए. फिफ्थ जो है उसका ऑरेंज होना चाहिए. सेवन्थ जो है वो रेड होना चाहिए. नाइन्थ जो है उसका येलो होना चाहिए. हियर इज अनदर हिंट, ड्रा द फर्स्ट बीड हियर. यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. वी हैव टू मेक बीड्स. ओके, तो अगर हम करें फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे फर्स्ट बीड बनाऊँ, है ना, इस माला में एक बीड बनाऊँ, तो ये कैसा फर्स्ट कैसा होना चाहिए, ब्लू. तो हम इसको ब्लू कलर करेंगे, है ना. मुझे अभी मेरे पास कलर्स नहीं है, तो मैं आपको ये जो है ये आप खुद करेंगे. ठीक है, तो ये कैसे आप करोगे, ब्लू कलर का. ठीक है, देन थर्ड बीड, यानी कि ये जो फर्स्ट है, ठीक है, हम इसकी थोड़ा सा मार्क करेंगे अपने ये जो याद रखने के लिए फर्स्ट पोजीशन पे है. सेकंड तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, सेकंड हम ऐसे ही रखेंगे, है ना. थर्ड जो है थर्ड, इसके बाद तीसरा बीड जो है वो ग्रीन होना चाहिए, यानी कि इस पर भी ग्रीन कलर हमें करना है. फोर्थ हम यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम सिंपली फोर्थ जो है अनकलर्ड रखेंगे. ठीक है, तो फिफ्थ बीड जो है वो यहाँ पे हम बनाएंगे फिफ्थ बीड, और उसको कैसे कलर करना है, ऑरेंज कलर करना है. सिक्स्थ यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको ऐसे सिंपल से रखेंगे. सेवन्थ जो है वो ऐसे, और उसका कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए. एट्थ यहाँ पे नहीं है, तो सिंपली हम बनाएंगे. और जो नाइन्थ है दैट्स येलो, तो इसका हम येलो कलर करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ जो है हमें इनको कलर करना है अकॉर्डिंग टू दीज हिंट्स. ठीक है, तो ये फिर स्ट्रिंग बन गया. ओके, ये बहुत ही ईजी है, ये आप खुद करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, that's the end of this exercise. This is the easy question. Look, match the place of each child to the ordinal.
हेयर आर मनी चिल्ड्रन, हेयर आर चिल्ड्रन, है ना। तो बहुत सारे जो यहाँ पे बच्चे हैं, तो ये किसी पोजीशन पे है ना। ये यहाँ पे टीचर है एंड दे आर शोइंग देयर नोटबुक्स, ठीक है, एंड टीचर इज चेकिंग देयर नोटबुक्स, ओके, जैसे हम क्लास में करते हैं। सो what question says is, I live on the third floor of a building with 10 floors. How many floors are below me? How many floors are above me? तो एक जो है कहता है, वो हमें क्लू देता है कि मैं जो हूँ, आई लिव ऑन थर्ड फ्लोर, ठीक है, मैं किस फ्लोर पे हूँ, मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे आपको बनाऊँगी, यानी कि ये जो कहता है कि मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ ऑफ ए बिल्डिंग विद 10 फ्लोर्स। एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें कितने फ्लोर्स है, 10 फ्लोर्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बन गए 10 फ्लोर की ये बिल्डिंग बन गई। ये कहता है कि आई लिव ऑन थर्ड फ्लोर, मैं किस फ्लोर पे रहता हूँ, थर्ड फ्लोर पे। तो थर्ड फ्लोर कहाँ पे है, तो अगर ये फर्स्ट है, IST फर्स्ट, सेकेंड, आफ्टर दैट थर्ड, ओके। तो थर्ड फ्लोर पे कौन है, ये जो कहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बच्चा ही लेंगे, ठीक है, चाइल्ड। तो किस फ्लोर पे रहता है, फ्लोर थर्ड पे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे रहता है। हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिलो मी, हाउ मेनी फ्लोर्स आर अबो मी, मेरे से नीचे कितने फ्लोर्स है और मेरे से ऊपर कितने फ्लोर्स है। देखो थर्ड के बाद क्या आता है, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ फ्लोर है, ये सेवन्थ फ्लोर है, ये एट्थ फ्लोर है, ये नाइन्थ, और ये 10th फ्लोर है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे है ना, ये चाइल्ड इस पे रहता है, ठीक है, इस वाली बिल्डिंग में रहता है। और ये कहता है कि मेरे से नीचे कितने बिल्डिंग्स है, कितने सारी सॉरी फ्लोर्स है, 1 और 2, है ना। तो कितने फ्लोर्स है इसके नीचे, तो इसके नीचे जो है, बिलो जो है, वो कितने हैं, 2 है ना। और इसके ऊपर जो है 1 2 3 4 5 6 7, इसके ऊपर कितने फ्लोर्स है, अब वो कितने हैं, 7। तो आप इसे लिखेंगे, एबो कितने हैं, 2, सॉरी बिलो कितने हैं, 2, और एबो कितने हैं, 7। तो आप इधर लिखेंगे। तो अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट योर क्लास टाइम टेबल टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट वी हैव टू डू इज टू लुक ऑन अवर टाइम टेबल, क्लास टाइम टेबल विच इज़ नॉट प्रेजेंट विद अस, है ना, अभी जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द स्कूल व्हेन वी फाइनली मेक आवर सेशन क्लासमेट, व्हेन वी सॉरी क्लास टाइम टेबल, ठीक है, देन वी विल एबल टू फिल दीज ब्लैंक्स, ओके, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल ऑफ आवर क्लास। अभी तो हमने नहीं बनाया, हम अभी तो हमें नहीं पता क्या पहला कौन सा पीरियड होता है, सेकेंड को मैथ जो है किस क्लास पे है, हम तो अभी जूम पे दे रहे हैं, है ना। तो ये जो है हम स्कूल में ही करेंगे। दिस वाज द ऑर्डिनल नंबर्स, मीन्स द पोजिशन of anything or the order of anything, like first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and 10th. These are their short forms, okay. Hope you have understand this, and I will close this lecture. Allah Hafiz.